اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا تذکرہ ہو تو لوگوں کی زبان پر ایک بات ہونی چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اہل بیت سے اگر کسی نے محبت کی ہے تو عمر ہے، اس کے علاوہ ان سے زیادہ کسی نے اہل بیت سے محبت نہیں کی ہے۔ اور اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا کے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں عمر کہ اگر تمہیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، اگر تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو اہل بیت سے جڑنا ہوگا، اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی۔ یہی عمر ہے حاضر گرامی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین ہما سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضر گرامی، میں نے خطبہ مسونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو پڑھا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تبلیغ ایمان کے عوض میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ تم میرے خاندان کے لوگوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ عزیز گرامی، اہل بیت کی محبت کا جہاں تک سوال ہے، یہ امت کی ضرورت ہے۔ حاضرین، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہو، وہ اہل بیت نبوت سے خوب محبت کرے حاضرین، اور ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کرے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں حاضرین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایران کے علاقہ کو فتح فرمایا تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت ملا مسلمانوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خاتون بادشاہ کی بیٹی شہزادی بھی گرفتار ہو کر آئی تھی حاضرین، جن کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ مسجد نبوی شریف میں تمام مال غنیمت کو رکھ دیا گیا۔ خلیفہ وقت سرکار سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آئے۔ آپ نے مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اب معاملہ تھا اس بچی کا جس کا نام شاہجہاں تھا، جو بادشاہ کی بیٹی تھی حاضرین، کہ آخر ان کا کیا ہوگا۔ تمام مال غنیمت کا جو حصہ پانے والے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ شہزادی ہے، ان کا حق ہے کہ ان کا نکاح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو۔ حاضر گرامی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضور یہ شہزادی ہیں، ان کا نکاح بادشاہ وقت مسلمانوں کے امیر المومنین کے بیٹے سے ہونا چاہیے تاکہ ان کی عزت و افزائش میں کوئی کمی نہ واقع ہو۔ سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اے میرے چاہنے والوں سنو ذرا، ابھی تک یہ دنیا کی شہزادی تھی، اب یہ دین کی شہزادی بنے گی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے حضرت عمر مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے علی میں چاہتا یہ ہوں کہ تمہارے چھوٹے بیٹے حسین سے شاہجہاں کا نکاح کر دیا جائے، میں قربان جاؤں۔ حاضر گرامی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین جیسی آپ کی مرضی۔ روایتوں میں بات آئی ہے حاضرین کہ پھر شاہجہاں سے پوچھا گیا کہ آخر بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، کیا تم حسین سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اس وقت شاہجہاں نے کہا تھا کہ اے خلیفہ وقت، بادشاہ کا حال یہ ہے کہ اسے پورا حق حاصل تھا کہ اس کی قیدی بنا کر میں لائی گئی تھی، اسلام میں داخل کریں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شاہجہاں کو کلمہ پڑھایا، ان کا نام شہربانو رکھا اور ان کا عقد حاضر گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اب وہ جب تشریف لے جانے لگی حاضرین تو لوگوں نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے آپ نے نکاح کر دیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ان کے جسم پر بہت سارا سونا ہے،
बहुत चांदी है, हीरे जवाहरात से वो बिल्कुल ढकी हुई है। एक काम करें, आप कम से कम इन ज़ेवरात को तो ले लें। सरकार उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप फरमाते हैं कि ये इसी हालत में जाएंगी। मैं चाहता हूँ, ये सरकार उमर का जुमला है हाज़रीन, कि कल जब कभी भी मुहिब्बीन अहले बैत का जिक्र हो, जब कभी भी अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का तज़किरा हो, तो लोगों की जुबान पर एक बात होनी चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अहले बैत से अगर किसी ने मोहब्बत की है तो उमर है। इसके अलावा इनसे ज्यादा किसी ने अहले बैत से मोहब्बत नहीं की है। और अपने अमल के जरिए से दुनिया के लोगों को पैगाम दे रहे हैं उमर कि अगर तुम्हें अपने ईमान को महफूज रखना है, अगर तुम्हें अपने ईमान की हिफाजत करनी है तो अहले बैत से जुड़ना होगा, अहले बैत से मोहब्बत करनी होगी। यही उमर है हाज़िर ग्रामी जो लिखा कर ले लेते हैं कि जब बारगाह औला में हाजिर होगा, अल्लाह पूछेगा, आए उमर अपनी बख्शिश का जरिया क्या लेकर आए हो? तो मैं मौला से कह दूंगा, ना मेरे पास नमाजें हैं, ना मेरे पास इबादत का खजाना है, लेकिन तेरे नबी के नवासे ने एक खत मेरे नाम लिखा है कि मैं उसके नाना जान का गुलाम हूँ, और मेरे मौला यही मेरी शिफाअत का, यही मेरी बख्शिश का जरिया मैं इसे समझता हूँ। कि सरकार उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है हाज़रीन, जो अपने अमल के जरिए से दुनिया के लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि अगर तुम्हें अपने ईमान की हिफाजत करनी है, तुम्हें अहले बैत से मोहब्बत करना होगा। एक आखिरी बात अर्ज करूं हाज़िर, उसके बाद रुखसत हो जाऊं। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पाकीज़ा बज़्म में मैं चाहता हूं कि लोग कुछ पैगाम भी लेकर जाएं। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ोहर व असर में सरकार की इब्तिदा में नमाज पढ़ा करते थे, मगरिब और इशा फजर में नहीं पहुंच पाया करते थे। घर में बीमार माँ थी, उनका ख्याल रखना पड़ता था, उनके दवा दारू का इंतजाम करना पड़ता था, उनके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता था। लेकिन एक शौक था हाज़रीन, हमेशा एक आरज़ू रहा करती थी कि काश किसी दिन साहिब कुरान से कुरान की तिलावत सुने। हाज़रीन हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब सरकार सूरह वद्दुहा की तिलावत करते तो खुशी के मारे हम लोगों के चेहरे चमक उठते थे। अभी कुरान कोई बेहतरीन कारी पढ़े हाज़रीन, तबीयत चाहती है कि वो पढ़ता रहे और हम लोग सुनते रहे, लेकिन जब कुरान को साहिब कुरान पढ़े तो उस पढ़ने के अंदाज पर मैं कुर्बान हो जाऊं, लाखों करोड़ों जान कुर्बान हो जाए। हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालिदा माजिदा से कहा कि अम्मा जान अगर आपकी इजाजत हो तो आज मगरिब की नमाज सरकार की इब्तिदा में अदा करूं और अपनी और आपकी शिफाअत की दुआ करवा लूं। वो निहायत ही सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुका है, अपना हाथी खाली है। ये हुज़ैफा को भी मालूम था, हुज़ैफा की वालिदा को भी मालूम था कि मेरा आका जो कह देंगे वो हो जाएगा। हाज़िर ग्रामी हुज़ैफा की अम्मा ने कहा कि सौदा बेटा जाओ और नमाज पढ़ो और आका से मेरी और अपनी शिफाअत की दुआ करा लो। ये पहुंचे हाज़िर, मगरिब की नमाज अदा हुई। उसके बाद हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अस्कार में नवाफिल में मशगूल हो गए और इतनी देर तक मसरूफ रहे कि इशा का वक्त हो गया। हाज़रीन ये सोच रहे थे कि अभी मैं जाऊंगा तो अम्मी मुझसे पूछेंगी बेटा शिफाअत का क्या हुआ, दुआ कराया कि नहीं कराया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर हाज़िर इशा की नमाज उन्होंने अदा की और इशा की नमाज के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा की तरफ जाने लगे तो हुज़ैफा भी पीछे पीछे चलने लगे। रिवायतों में बात आई हाज़रीन कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म खैर देखें, हुज़ैफा पीछे है, इन्होंने कुछ कहा नहीं। हाज़िर मेरे आका फरमाते हैं मन हाज़ा हुज़ैफा, तो ये मेरे पीछे कौन आ रहा, हुज़ैफा तो नहीं। मा हाजतुका, तेरी जरूरत क्या है, गफरल्लाहु लका व लिउम्मिका, अल्लाह तुझे भी बख्श दे और तेरी वालिदा को भी बख्श दे। मैं कुर्बान जाऊं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर हाज़िर ग्रामी कि हुज़ैफा ने अपनी जुबान से कुछ कहा नहीं, जरूरत दिल में लिए हुए है कि मैं अपनी वालिदा की दुआ के लिए और अपनी शफाअत की दुआ के लिए आया हूँ। पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन हाज़िर ग्रामी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में जब कोई कहीं से भी अरीसा लगाए, जब हिंदुस्तान से लगाए, पाकिस्तान से लगाए, अफगानिस्तान से लगाए, अमेरिका मॉरिशस से लगाए, हाज़रीन तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान लिया करते हैं कि मेरी उम्मत क्या कहना चाह रही है, मेरी उम्मत मुझसे किस चीज का मुतालबा और मांग कर रही है। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर ने पीछे पीछे चलने लगे। आका ने फरमाया मन हाज़ा, ये कौन है हुज़ैफा, हुज़ैफा तो नहीं। हुज़ैफा कहते हैं खुद नाम या रसूल अल्लाह, हाँ मैं ही हूँ। हाज़िर ग्रामी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गफरल्लाहु लका व लिउम्मिका, अल्लाह तुझे भी माफ फरमा दे और तेरी वालिदा को भी बख्श दे। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं हुज़ैफा रुको, अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया था जो सिर्फ दो बातों के लिए आया था। एक कि मुझसे सलाम करने के लिए वो आया था, दूसरा काम उसका ये था कि वो खुशखबरी देने के लिए आया था कि वो खुशखबरी ये है कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो मेरी दुख्त देने का अख्तर है, वो जन्नती औरतों के सरदारा हैं और मेरे दोनों नवासे हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हाज़िर ग्रामी और मैंने रिवायतों में बात पढ़ी है कि जन्नत को बांटने वाले भी यही दोनों हजरात होंगे। हाज़िर ग्रामी इसलिए अगर हमें और आपको जन्नत में जाना हो, हमें और आपको हाज़िर आखिरत
کو सवार नहीं हो तो अहले बैत से मोहब्बत करना होगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के मौके पर फरमाया था, अना तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन, क्या लोगों में तुम्हें बेसहारा छोड़कर लावारिस छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, तो मैं दरमियान तो भारी भरकम चीजों को छोड़े जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उसमें पहली चीज अल्लाह पाक की किताब कुरान पाक है। फखुज़ू बिलकुव्वा वस्तमसिकू, उसे मजबूती के साथ पकड़े रहो और थामे रहो। उसके बाद मेरा आका फरमाते वही तरती अहले बैती, और दूसरे मेरे घर के लोग हैं, उज़क्किरुकुमुल्लाह, 3 बार मेरे आका ने फरमाया कि मैं तुम्हें अहले बैत का वास्ता देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर अहले बैत की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ कि अगर तुम कुरान को थामे रहोगे, कुरान पाक की मोहब्बत तुम्हारे दिलो दिमाग में होगी हाजिर। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अगर एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में अहले बैत की मोहब्बत होगी, तो ये जान लेना कि अल्लाह तुम्हें बख्श देगा हाजिरी। और ये खुदाए वहदहू ला शरीक का करोड़ों एहसान हम लोगों पर है कि हम वही कौम है अहले सुन्नत वल जमात हाजिर, जो कुरान को मानती है, कुरान की मानती है, जो अहले बैत से भी मोहब्बत करती है, जो सहाबा से भी मोहब्बत करती है, जो औलिया और ताबईन से मोहब्बत करती है। बहुत सारे लोग हाजिर कुरान के 40 पारे मानकर गुमराह हो गए, बहुत सारे लोग हाजिर सिर्फ अली को सब कुछ जाना, उसके अलावा बाकी सहाबा की शान में तबर्रा किया, इसलिए वो गुमराह हो गए। किसी ने हसनैन करीमैन ही को सब कुछ जाना हाजिर, इसलिए गुमराह हो गए, और बहुत सारे फिरके हो गए हाजिर ग्रामी। लेकिन अल्लाह का फजल एहसान है हम पर और आप पर कि हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं हाजिर, हम कुरान को मानते हैं, हम कुरान की तिलावत भी करते हैं, और अहले बैत इत्तेहाद से सच्ची मोहब्बत भी करते हैं। और हाजिर वक्त यह है कि हम किरदार को बदले, लिबास को बदलने की जरूरत नहीं, किरदार बदले, यकीन जानिए हुसैनी किरदार अपनाने की कोशिश करें हाजिर ग्रामी। बहुत सारी कमियां हमारे औरात के अंदर हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कम से कम इतनी तौफीक को बख्श दे कि कम से कम एक साल में एक कमी तो हम दूर कर ले जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुक़द्दस में दुआ कि मौला ताला हमें औरात को अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।